بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اور کوئی مسئلہ ہے جسے ایک جگہ کہتے ہیں وما ورع نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جملہ بھی تو ہے نا انہی کا۔ انسانی کمزوری اگر برہان نہ دیکھتے تو لولا را برہان ربی، برہان کا مطلب نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت اپنے ماحول میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا، جی اپنے ماحول میں اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا کے رکھنا، یہ جو صاحب کردار کا جو کردار ہے وہ ہمارے کو جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ اس سورے میں ایک آیت آئی ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں، تو اصل میں اس وقت جو مخاطب تھے جو لوگ مشرکین مکہ، وہ جس طرح کی سازش یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی وغیرہ اس ٹائم پہ کر رہے تھے، اسی طرح کی سازشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت چل رہی تھی۔ تو ان حالات میں ہمیں ان آیات سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہوتی ہے وہ بروئے کار اللہ تعالیٰ اس کو لا کر رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ ایک دوسری چیز جو ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ دو اور جو ساتھی تھے، جو خواب کا واقعہ وہاں بھی ہے، ان کو جو خواب آیا اللہ کے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے شیئر کیا، یعنی کہ اس سے بات نکلتی ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم اسلام کے پرچارک ہیں، اسلام کے داعی ہیں، تو ہمیں بھی ہماری شخصیت پر دھیان دینا چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کریں۔ یہ چیز سے نکلتی ہے کہ آج دیکھتے ہیں ہم بھارت میں کتنے مسائل ہیں کہ لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں، یہاں پر غریبی ہے، یہ چیزیں ہم سے لوگ اگر شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس کا مسئلے کا حل بتائیے کیا حل ہے، یہ چیز یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ جی اور کوئی پہلو؟ یہ قرآن مجید میں 3 نفوس کا ذکر ہے، اس میں خاص طور پر یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے کہ نفس امارہ ہر ایک کو جو ہے تو 3 نفوس جو ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ سب کو برائی کی طرف اکساتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کو بھی اکسایا، سب کو اکساتا رہے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک ہے نفس لوامہ جو ملامت کرتا رہے گا، جسے آپ ضمیر یا کانشینس بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کی جنگ میں اور سنگھرش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ۔ تو یہ اہم پہلو بھی یہاں آ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مولانا ایک بات یہ ہے کہ انسان نہ نیکی پر قادر ہے نہ تو برائی سے بچ سکتا ہے، جب اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرپرستی کرے۔ مگر تحریک تو انسان ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تکمیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ توفیق کے بغیر نہیں۔ اس کے لیے قرب الہی ضروری ہے، یہ قرب الہی ہے، بس صحیح ہے۔ کہ وقت کا بڑھ واللہ یہدی من ینیب، واللہ یہدی من ینیب ہے نا جی۔ اور کوئی پہلو ہو؟ وفوق کل ذی علم علیم، اس پہلو اس سے کیا چیز نکلتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے؟ ان کا قربہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم آیت سے۔ وہ جو سوال آیا تھا عابد اطہر صاحب کا، تو میں بھی اس پر غور کر رہا تھا، پہلے بھی غور کرتا رہا۔ ابھی اور تھوڑا کر لیجیے، بولنا ضروری نہیں ہے، بات جی نہیں میں بھی اس کا ایک وہ پیش کر رہا تھا کہ کیوں ایسا ہو۔ جی جی اور جی شاہ صاحب نافی پہلو یہ ہے، آپ جس جگہ بھی ہو، جیل میں ہو، سفر میں جہاں بھی ہو، آپ وہاں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ نہیں کہ آپ جیل میں نہیں کر سکتے، وہاں نہیں کر سکتے، جس حالت میں بھی ہو، جس میں جس مقام پہ آپ ہو، وہاں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے جیل میں پڑے۔ اس سورے میں 3 یا 4 مرتبہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آیا ہے، اچھا بار بار جگہ پر۔ اس طرح کے احسان کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جس بھی حال میں ہو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، وہ پلٹ کر ہمیں فائدہ۔ ایک داعی اللہ کے لیے ایک پہلو اور بھی اس میں ہے زبردست، وہ یہ ہے کہ
अल्लाह ताला का सहारा उसे बहुत महसूस होता है हर मुश्किल वक्त में। अगर आदमी मुश्किल वक्त में होता है ना, तो अल्लाह का सहारा उसे महसूस होता है। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, एक तो वहाँ कहा उन्होंने वमा उबर्र नफ्सी इन्नन नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, और उसके बाद भी जेल में फिर आप देखिए। तो ख़ास तौर पे जब दुनिया के सहारे ख़त्म हो जाते हैं या दुनिया के ज़राए जब मफकूद होने लगते हैं, तो वहाँ अल्लाह के सहारे की अहमियत समझ में आती है और वो ज़ाहिर भी होना शुरू होता है। तो इसलिए ये भी कि अल्लाह से इंसान करीब होता है, ऐसे वक्त में बहुत करीब होता है, इतना करीब होता है कि उसे एहसास होता है कि पल पल की खबर अल्लाह हमारी रख रहा है और हम उसके नज़रों में हैं। यहाँ नहीं महसूस हो पाता इतना, लेकिन वहाँ होता है, ख़ास तौर पे तन्हाई में जब आदमी होता है, तो जेल की ज़िंदगी में। सर कल भी मैंने एक बात कही थी कि अम्बिया, सारे अम्बिया और ख़ुद यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी शख्सियत में और उनके मनसब भी जिम्मेदारी के लिहाज से ये दोनों पहलू बहुत नुमायाँ है। ज़ाहिर है वो तो मबूस नबी थे, तो एक तरफ वो दावत भी दे रहे थे चाहे हालात जो भी हों, मौक़े जो भी हों, और साथ ही खिदमत खल्क़, दावत खिदमत खल्क़, दो बातें जो ताकीद के साथ बार बार हमारे सामने आना चाहिए। तो खिदमत खल्क़ के सिलसिले में 7 साल की एक ज़बरदस्त प्लानिंग भी वो पेश कर रहे थे, और वो प्लानिंग के साथ भी वो काम कर रहे थे। तो दावत खिदमत खल्क़, ये दोनों बहुत हमको अहम तौर से सामने रखना चाहिए। दो साथी जो आए उनके ख्वाब की ताबीर पूछने, वहाँ भी कोई पहलू है तरबियत का। उनसे कहा कि रुको अभी खाना आने दो, क्यों नहीं फौरन बता दिया जी। ये है दावत के पहलू से भी ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाला जो अभी आ रहा है किस हालत में है, उलझन की हालत है, थका हुआ है, हाँफ रहा है, क्या कंडीशन है। मगर थोड़ी देर आराम करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ हो तो डॉक्टर कहते हैं रुकिए रुकिए बैठिए आराम कीजिए, उसके बाद चेक करते हैं, तो सही रिजल्ट उस वक्त आता है। जी और कोई पहलू? जी वो आपने जो वाक्य था उसमें बड़ा अच्छा पहलू है कि वो जो 2 कैदी आए, उन्होंने कहा कि ये सवाल है हमारा, वो जवाब के लिए बड़े बेचैन थे। अब वो अटेंटिव हो गए थे कि अब ये जो भी बोलेगा हमको, हम उसकी बात को सुनना है। तो उन्होंने क्या क्या जवाब बाद में दिया, और जो दावत थी उसको प्रायोरिटी दे दी। एक बात ये उसमें कि उन्होंने अपना काम निकाला, जो अल्लाह का पैगाम की जो लगन थी उन्होंने फौरन मौका गनीमत जान के वो दे दी। और दूसरा ये है कि कोई लंबा भाषण नहीं दिया। आप देखिए हम लोग आजकल क्या करते हैं कि लोगों को बड़ी लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, उसका असर नहीं होता। उन्होंने पहले ही कह दिया उसे कि जो खाना आएगा इससे पहले ही मैं बात खत्म कर दूंगा, ये नहीं समझना कि मैं बिठा के 10 घंटा कहूंगा। ये जुमला है कुरान में कि खाने आने से पहले मैं कह दूंगा। तो वो लोग भी मुतमईन हो गए कि भाई अभी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा और खाना आ जाएगा। तो ये एक पहलू है दावत का। एक चीज़ और है, ठीक है बहुत अच्छा, एक चीज़ और है, जब कहा गया कि हजरत यूसुफ को जेल से ले आओ तो फौरन निकले क्यों नहीं? वो अपने ऊपर जो इल्जाम लगा था उसकी बरात का ऐलान चाह रहे थे। इससे क्या सबक मिलता है? इससे कौन सा पहलू भर के आता है? एक दाई का किरदार बेदाग होना चाहिए। सही है, बेदाग होना चाहिए, लेकिन एक उसमें और उस वक्त भी लोग जानते थे, ऐसा नहीं है कि, मगर उन्होंने खुद कहा था मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ये कि हमें अभी इस मुश्किल से हटा दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे पहलू अब आ गए आप लोगों की तरफ से। अब मौलाना है, एक और पहलू है जी, बताइए। जिसको तो कैद करने के साथ ही ना, कैद करने के जो तो उनको जैसे ये नहीं बोले कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बड़ा, बल्कि है मेरे कैद करने के साथ ही हो, बल्कि जो है इसमें ये है पता चला दाई कभी भी अपने आप को ऊंची चीज नहीं समझता। ये पहलू भी है, साथी हैं तो इसलिए आप देखें कि हर नबी कहता है या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनाइयत है, मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है। तो अब मोहतरम मौलाना नईमुद्दीन इस्लाही साहब की गुजारिश है कि वो अपने इख्तितामी कलिमात इन सारे पहलुओं पर या जो ज़्यादा वो समझते हैं उस पर इरशाद फरमाएँ। मैं एक बात कह सकता हूँ, इसमें एक जिक्र ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जिक्र करना
اس میں آپ نے اپنی دعوت کی بات نہیں کی ہے، اپنے پیغام کی بات نہیں کی، بلکہ اپنا میرا ذکر کرنا کہا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے تو فل ٹائم داعی ہونا چاہیے، یا دعوت کے لیے کچھ الگ سے وقت نکال کر دعوت کا کام کرنا چاہیے، بلکہ مومن کی پوری زندگی دعوت ہوتی ہے. چاہے وہ کہیں پہ بھی رہے، کوئی بھی کام کرتا رہے، اس کی پوری زندگی دعوت ہوتی ہے. ٹھیک، شکریہ. جی ماؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. و بعد، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے خوب اس میں حصہ لیا اور اچھے انداز سے گفتگو کی. ایک سورہ کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آ گئے. ایک آیت جو ہے، 2-3 آیتیں ان پر غور کر لیں، پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. وہ ان آیات میں گویا کہ سورہ کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. سورہ کدھر جائے گی، سورہ کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے. پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے، اس کے بعد لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین. لقد كان في یوسف واخوته آیات للسائلین. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لقد كان في یوسف ہے، بے شک یوسف کی زندگی میں اور اس کی طرز عمل میں، یوسف کے طرز عمل یا اس کے بھائیوں کے طرز عمل میں آیات ہیں. آیات مانے نشان، ایک نشان نہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والے کون تھے؟ اب دیکھیں 2 باتیں آئیں. کچھ لوگ کہہ رہے قریش کے لوگ، اہل کتاب. یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں 2 باتیں ہیں. اب یہ سورہ مکی کے مدنی، مکی ہے، تو سامنے یہود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سامنے یہود نہیں ہے. سامنے کون ہے؟ قریش کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. قریش کے لوگوں کو یوسف کی تاریخ اور یعقوب کی تاریخ، بنی اسرائیل تاریخ کیا دلچسپی ہے؟ کیا ان کو دلچسپی ہے؟ کیا فائدہ ان کو؟ سوال ہے نا. ان کی تاریخ سے ان کو کیا دلچسپی ہے؟ وہ تو آپ جانتے بنی اسرائیل سے نفرت بھی رکھتے تھے، معلوم ہے کہ نہیں؟ نفرت رکھتے تھے. قریش کے لوگ ان سے نفرت رکھتے تھے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم توریت کے بھی منکر ہیں، توریت کے منکر ہیں، موسیٰ کے منکر ہیں. تو اب ان کو حضرت یوسف کی تاریخ سے تو کوئی خاص دلچسپی نہیں. اور یہود سامنے ہے نہیں. یہود کہاں ہے؟ مدینے میں ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے سائلین سے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ شہیر صاحب، کون لوگ ہو سکتے ہیں سائلین سے؟ من ہم، من المراد للسائلین؟ دونوں ہو سکتے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ اشارہ کہیں نہیں، جیسا آپ لوگ بتائیں کہ انہوں نے سکھایا ہے. کس کو؟ مشرکوں نے سکھایا. یہ کہیں نہیں کہ انہوں نے سکھایا ہے. یہ تو ہے، ظاہر ہے کہ وہ پس پردہ ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کہیں کوئی قرینہ یہاں نہیں ہے کہ یہودیوں نے سکھایا ہے، کہیں قرینہ نہیں. اور مشرکین کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ان کی تاریخ سے. کئی سوال پیدا ہوگا. نہیں تو آپ دیکھیے یہ ان کے اندر نفرت ہے. یہود کو بھی نفرت ہے بنی اسماعیل سے، اور ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک ان سے نفرت ہی ہے. اصل میں وہ جاننا نہیں چاہتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت کو بولنے کے لیے ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے تعلق سے یہودی قریش کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کا پول کھل جائے
कि वो फलस्तीन से मिस्र तक कैसा है। गोया कि आप कह रही है ना कि उन्होंने उभारा है, ये बात हुई ना कि मुश्किन को उभार रहे हैं, वो कह रहे हैं, किसी करीना नहीं है कि उन्होंने कहा, मुश्किन से कहा हो, तुम पूछो, ये तो नहीं है। इसमें दोहराने उभारते हैं, जैसे क़ुरान खुद वइन्न शयातीन लयुहून इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम, ये शयातीन कुछ बातें करते हैं ताकि तुमसे झगड़ा करें, ये बातें हैं और वो उसका नाम उसका जिक्र है, फिर उसकी तफसीलात हैं। लेकिन यहाँ तो कोई करीना इस तरह का नहीं है। सूरह नाम में जो करीना है कि जो सवालात मुश्रिकीन ने किए हैं वो यहूद ने सिखाए हैं, ये यहूद के उलमा ने सिखाए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई करीना इस तरह का नहीं है। तो लिहाजा समझ में आ रही बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात 15 मिनट दिख रह गया, 11 बजे तक चलेगा ना। अच्छा सिर्फ 10 कम है थोड़ा, लेकिन अब उसको मैं समेटूंगा थोड़ा सा ताकि जो है। अब देखिए ये सूरह यूसुफ है ना, मरकज़ी मजमून क्या है इसका? दावत है। अच्छा सुनिए, हमने बताया सूरह यूनुस से जो सूरतें चल रही हैं, अलिफ लाम रा सब हैं, उनका मरकज़ी मजमून क्या है? एक तो है तौहीद को गलबा होगा, गलबा होगा, तौहीद गालिब आएगी, कुरान गालिब आएगा, ये नबी गालिब आएगा, नबी गालिब आएगा। तो आप देखेंगे वहीं से सूरह यूनुस में भी ये चीज़ है, सूरह हूद में भी है। अलबत्ता कहीं बशारत का पहलू गालिब है, कहीं इंतज़ार का, यानी मुसलमानों को बशारत दी गई, उभारा गया कि मुसलमान घबराओ न, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं, तुम्हें गलबा मिलेगा। तो आप सूरह हूद में देखेंगे कि इंतज़ार शदीद है, यानी मुश्रिकीन की हज़ीमत को उभारा गया है कि तुम शिकस्त खा कर रहोगे। जिस तरह कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम इब्राहिम को शिकस्त हुई, ठीक उसे तुमको शिकस्त होकर रहेगी। ये पहलू वहाँ उभरा हुआ है, वह इंतज़ार का पहलू। सो यूसुफ में क्या है? अब बोलिए, सो यूसुफ में क्या है? बशारत का पहलू है, बशारत का पहलू है, ये मुसलमान गालिब होकर रहेंगे। अब आप सोचिए मक्का है, ये जो है जुल्म सितम हो रहा है, उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही है, उसमें खबर हो रहा है, ये खबर दी जा रही है मुसलमान सब गालिब होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कैसे किसरा कंगन आएंगे, बोलिए, और फुला फुला। अब बताइए, इस समय में नहीं आ रहा है, ऐसे में बशारत दी जाए, समय में आएगी बात? नहीं समझ सकती। तो ये एहसासात उभर रहे हैं, सवालात किसके अंदर उभर रहे हैं? सहाबा के अंदर। ये मुसलमान हैं, ये कैसे होगा? हमको गलबा कैसे मिलेगा? ये सोने कंगन कैसे पहनाया जाएगा? किसरा कैसे तबाह होंगे? कैसर कैसे तबाह होंगे? दुनिया के जो जवाबिरा हैं उसमें कुरैश के, ये सब कैसे तबाह होंगे? ये सब उनके अंदर सवालात उभर रहे हैं, जवाब उनको दिया जा रहा है। किनको? मुसलमानों। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। सवाल देखिए दो तरह का होता है कुरान मजीद। सवाल एक तरह ये है कि कुछ लोग आएँ सवाल करें, और दूसरा ये होता है कि अंदर पैदा माहौल पुकार रहा है, माहौल, पूरी फिज़ा ज़ुबान हाल से सवाल कर रही है। अरे ये हालात है, ये मजलूमियत मुसलमानों की, दूर दूर तक उम्मीद की किरण नहीं, इसमें गलबा कैसे होगा? ये सवालात कहाँ पैदा हो रहे हैं? लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं। तो कुरान मजीद यसअलूना का यसअलून, आप देखते हैं ना, यसअलूना का यसअलून बार बार आता है, तो जहाँ वो कुछ लोगों ने पेश किया वो भी हो सकता है, और ये भी है कि अंदर पैदा हुआ। आप देखिए सूरह बकरा पढ़ते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी। कोई बंदा मुझसे पूछता है, मुझसे पूछने का मतलब क्या है? बंदा क्या पूछता है? हम आप अल्लाह तो पूछते हैं क्या? ना ना ना, हमारे दिल में सवालात पैदा होते हैं, दिल में एहसासात पैदा होते हैं। रोज़े का है देखो उसके ऊपर, जी भाई ये है कि ऐसे से रोज़ा रखना है। अब सवाल ये पैदा होगा, जो हामिला हो, मिसाल में दे रहा हूँ, हामिला हो वो क्या करे? हामिला मुसाफिर क्या करे? मरीज़ क्या करे? उसका जवाब देखिए दिया है। ये सवालात पैदा होते हैं। और फिर आपको मालूम है कि भाई सहाबा किराम का जो अंदाज था या तर्ज ज़िंदगी जो थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले में क्या था? इत्तिबा, गैर मामूली इत्तिबा कर रहे थे।
गैर मामूली इत्तिबा कर रहे थे, तो रोज़ा दिन में रखते थे। ऐन मुमकिन हो कि इत्तिबा को जज्बा है, बेपनाह जज्बा है, रातों को भी वो बीवी से करीब न होते हों। बोलिए वहीदा साल के बाद ये अन्य के बाद क्या कह रहा है? उहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, उहिल्ल लकुम यानी तुम्हारे लिए हलाल के। इसका मतलब क्या है? हलाल खाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बाज लोगों ने अज़राए ज़ुहद, अज़राए तक़वा क्या किया? नहीं या जाएंगे, किया उन्होंने। इस वगैरह मुसलमानों हलाल किया गया, तो ये पैदा हुआ कहाँ? एहसासात पैदा हो रहे हैं दिल में, उनका जवाब दिया जा रहा है। तो गोया कि ये बशारत की सूरह है, पूरी सूरह आप देखेंगे ये बशारत इसमें, और किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए है। आखिरी टुकड़ा जो आखिरी आयत क्या है मौलाना? आखिरी आयत व तफसीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लिकौमी युमिनून है, आखिरी आयत है। ये हिदायत है, ये पूरी सूरह हिदायत है और रहमत है किन लोगों के लिए? उन लोगों के जो ईमान रखते हैं। ये पूरी सूरह रहमत है, पूरी सूरह रहनुमाई किन लोगों के लिए? अहले ईमान के लिए। तो बशारत किन लोगों के लिए है? जो सवालात उभर रहे हैं किनके अंदर? मुसलमानों के अंदर। ये पहलू जो है इसका बड़ा नुमाया पहलू है और बड़ा उभरा हुआ पहलू है। तो अब तो हमने बताया दिया, लोगों ने कहा है, अब उसको आपको ज़रा सोचना है इस पर। आप सोचिए उसको कि वो कहाँ तक सही है बात। दूसरी बात ये है कि अब देखिए कि ये अजीब व गरीब, आप बताया ना अहसन क़सस इसको कहा है कुरान मजीद में। अहसन क़सस जो है शुरू से लेकर आखिर तक इसका हर पहलू अपने अंदर हुस्न रखता है, हर पहलू हुस्न रखता है। आप सोचिए किस अंदाज से आते हैं, उनको कुएं में फेंक दिया जाता है। अब दास उस पर 5-3 ही मिनट है, वरना उस आयत की तो तफसीर रह गई। उक़्तुलू यूसुफ वाली बात तो रह गई। देखिए इतना बार तो यक़ुल लकुम मुझ पर रह गई, क्योंकि वो जो ज़्यादा देर हो जाएगी हमको। अब सवाल का जवाब जो है ना, उनका सवाल है ना, और वहाँ देखिए भाई वहाँ अहम सवाल उनका है, इसमें दो राय नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जवाब दे दें या मुतमईन हो जाए। बोलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शहीद साहब जो है अरे अत्थर साहब मुतमईन, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम जवाब कुछ न कुछ देंगे भाई, और शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है, शेयर करेंगे हम सबसे, सब लोग उसमें शरीक हो। ये कह रहे हैं क्यों नहीं जवाब दे दिया? कौन? हम यूसुफ हैं आतम भाई। अरे साहब ये देखिए, ये जो है सूरह यूसुफ निस्फ पर वो आया, जब गए हैं पहचान फारफा, उन्होंने पहचान लिया ये सब हैं। अरफा के माने पहचान, अरफा के माने गौर तामुल किया, तामुल के बाद जो गौर तामुल किया, अरे रे रे ये वही हैं। फारफहम वहुम लहू नाकिरून, नाकिरून माने पहचान नहीं रहे थे और समझ लिया उन्होंने। अब आप बताएं उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 सफ़ात हैं, 5 वरक़ हैं। इनका जो ख्याल है फ़ोन बता दें, अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा कुल मसला ख़त्म हो जाता। वो जो 5 वरक़ में जो खूबियाँ, जो हिकमतें, दानाई हैं, जो मोती हैं इंसान तरबियत के, वो आ सकते थे। इनका तो ये है कि राज फाश कर देते, राज फाश करते। फिर असक जो मज़ा है, हर सफ़े मज़ा है, हर पहलू देखिए। अगर आप जो है मसरहिया जो है, ये सैयद कुतुब शहीद जो है, ये बलागत बहुत जोर देते हैं, और उसको बाबा मसरहिया माने ड्रामा के अंदाज, ये पहलू है। क्या बोलते हैं? हाँ, सस्पेंस नहीं भाई, सस्पेंस माने शशोपंज के आते हैं। सस्पेंस इंग्लिश लफ्ज़ है ना, वो फारसी है शशोपंज। शशोपंज में तजब्जुब, बोलिए तजब्जुब है ना, तरद्दुद, ये सब तरद्दुद करना नहीं है, इसमें तरद्दुद बात नहीं है। हाँ, वो अंदाज जो है, आप देखिए अभी अब क्या होने वाला है, किस अंदाज से आप बताइए। वो गए कहा कि साहब जब रख दिया, उनके पैसे नहीं लिए, सब वापस कर दिया। अब एक सवाल पैदा उनके साथ, क्यों नहीं पैसे लिए? उनके सवाल में ये भी ध्यान पैदा हो सकता है, क्यों पैसे नहीं लिए? सबसे ले रहे थे। अरे भाई इस्लाम सिखाता है सिला रहमी, नहीं सिखाता? सिला रहमी तो सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, सिला रहमी सिखाता है। वो पहले देखिए आया, हजरत याकूब ने भी समझा था ऐसे जाना है, एक दरवाजे से न जाना है। ये सब बातें हैं ना कि सब
दिखाए। और खुद अब देखिए जो जब गए हैं हजरत याकूब का ये पहलू, जब वो बता देते थे कि हम ही हैं, तो जाकर वो बताया वो यूसुफ वहाँ है, तो फिर कहते कि भाई वो लिया। फिर उनका जो जौहर खुला हजरत याकूब का, क्या कहा कि देखो तुमने तो उसके साथ किया है, हम तुम पे एतमाद नहीं कर सकते, लेकिन चलो अल्लाह पर हम तवक्कुल करते हैं, अल्लाह इसका फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये जुमला कैसे सुनने को मिलता, उनका जो है ये जुमला नहीं मिल सकता था। ठीक। दूसरी बात ये है, देखिए जब फिर गए हैं, जब बिन्यामीन को उन्होंने पा लिया, बिन्यामीन को जब पा लिया है तो फिर उनको अब जो है रोका है। कैसे रोका है, क्या क्या दादा ये हिकमत, और किसने रोका, किसने रोका, अल्लाह ने रोका। उनके बस में नहीं थी बात, आप समझ लीजिए, अल्लाह ने रोका और क्या तरकीबें की है। अब बताइए, अब वो सारा सामान रखा गया है और जो है उन्होंने प्याला रखवाया। किसने प्याला रखवाया है, यूसुफ ने प्याला रखवाया भाइयों के उसमें, है ना। किस लिए रखवाया है, देखिए पहले नहीं रखवाया था, ऐसे सहराई जिंदगी है, भाई है, बताइए तो सगा भाई है ना, बोलिए अथर साहब, हजरत बिन्यामीन क्या सगे हैं ना, सगे भाई हैं। अब भाई को रखवा दिया है, सहारा है, रेगिस्तान है, प्यास लगेगी, और आप देखिए शिद्दत है, गर्मी है, गर्मी है, आगे जो जुमले जा रहा मालूम हो रहा है, गर्मी है, रख दिया। क्यों रखा, सिले रहमी है, सिले रहमी इस्लाम सिखाता है, सिले रहमी रख दिया है। अच्छा साहब, फिर जो है अब खो गया, क्या खो गया, सुवाल मलिक खोया है, सुवाल मलिक। आज देखो देखो कहाँ गया, सुनो समझा कि भाई एक काफिला आया था, जो वो गया कनान से आया था, तो अब तफ्तीश हुई, कहाँ मिल गया, क्या यूसुफ ने रखवाया था, हाँ ना ना ऐसा नहीं है, ये कोई तदबीर नहीं है यूसुफ की ना, ये गलत है। देखिए रब का इशारा नहीं है, कुछ नहीं, वो तो रखवाया है। क्या रखवाया है, प्याला रखवाया है भाई, प्याला रखवाया किसके लिए, पीने के लिए, पानी पीने। और गुम क्या हुआ है, सुवा। जब इन्होंने निकाला तो क्या मिला, सिखा। लेकिन इनको मालूम नहीं था, किनको, जो तफ्तीशकार थे, इनको मालूम नहीं था कि ये प्याला रखवाया किसने, इनको नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा अरे हम तो एक मामूली चीज़ ढूंढ रहे थे, नपनी, और मिल गए, ये शाही पैमाना लेकर चले जा रहे हैं प्याला, ये तो बहुत बड़े मुजरिम, हम तो छोटी चीज़ ढूंढ रहे थे और बड़ी चीज़ मिल गई, ये ले आए। अब जब आया कि देखिए साहब, वो तो सब मैं छोड़ रहा हूँ, फबदा बेवती कबले वे आखी। अब देखिए जब मामला पेश हुआ है, यूसुफ साहब फिर आ रहा है, ये अगर पहले बता देते तो सब आता, जो हिकमतें दानाई की बातें हैं सब आ सकते, नहीं आ सकते। अब देखिए क्या कहा, जब निकल गया तो फट से कालू यसरिक फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। बताइए ये जुमला हज़रत यूसुफ के कान तक पहुंच सकता था, कितना खतरनाक जुमला है साहब, कितना खतरनाक। अगर इसने चोरी की, इसका भाई भी एक चोर था। इशारा किधर है अतहर साहब, अतहर साहब बोलिए इशारा किधर है, बोलिए 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 आप, इशारा किधर है। बस बस आप सोचिए अगर वहाँ तो ये जुमला सुनने को आप सकते तो दिल तो उनका फट गया होगा। अरे फटा नहीं, पैगंबर है, इन्नहु मन यत्तक़ी वयस्बिर, पैगंबर है, पैगंबर ऐसा नहीं होता कि जज्बात में ऐसा नहीं होता। फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्ल है। अब देखिए छुपाया असर रहा यूसुफ फी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। उन्होंने कहा कि इसका भाई भी चोर, इशारा किधर है, यूसुफ की जन्म, यूसुफ जानिब है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यूसुफ की जानिब, इसका भाई यानी ये भी चोर, इसका भाई भी चोर, यानी कुछ और भी कह गए वो अतहर साहब, क्या कह गए, पोशीदा क्या कह गए वो, बोलिए। ये भी चोर है, इसका भाई भी चोर है, यानी इसकी माँ चोरनी है या चुट्टिन है, क्या बोलेंगे आप, मफ्ती एक ही चीज कितने शिकार किए। ये जुमले आ सकते थे, ये जो इंसान की जो नफ्सियात आ सकती थी कभी, अगर वही बता दिया होता। ये किरदार की बुलंदी देखिए एक तरफ, और ये किस तरह पैगंबर ने सुना, ये आ सकता था अगर पहले बता देते तो। इन यसरिक फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, ये भी चोर है, इसका भाई भी चोर है, और इसकी माँ भी चोरनी है। अब सोचिए आप,
ये है। लेकिन हजरत कुछ नहीं कुछ कहा। हम और आप होते अथर साथ क्या कहते थे, हो झगड़ा उठते, बोले झगड़ा उठते कि नहीं भाई, कुल गड़बड़ हो जाता। कहा फिर ऐसा है। अब देखिए भाइयों का किरदार आ रहा है, ये नफ्सियात इंसान, ये सूरज तो इतनी गहरी नफ्सियात के हामिल है। सब छोड़ दीजिए, सिर्फ नफ्सियात इंसान का आप पढ़िए। कह रहे हैं कि भैया एक तो था मसला, इसका भाई तो गायब हो गया कहीं, अब ये बाप सुनेगा तो क्या कहेगा। आप देखिए, कहे भैया हमको ले, हम इस किसी को रख ले। कहा ना आलमाज अल्लाह ना, हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते। अब उन्होंने अल्लाह ताला की तदबीर कज़ालिक, कितना यूसुफ है ना, अल्लाह हमने वो नहीं पकड़ सकता, नहीं ले सकता। कज़ालिक कितना ले यूसुफ, हमने तदबीर की, यूसुफ ने कोई तदबीर नहीं की। लोगों ने आमतौर पर कह दिया कि ये चोर है। बकैफ अब आप देखिए पूरे सूरह में जो चीज़ बयान की गई है, आखिर में जो नक्शा खींचा है, ओ अब आखिर में जो नक्शा इन्होंने खींच दिया। अब हज़रत यूसुफ का जो किरदार और उसके बड़े भाई का किरदार जो आया, वो भी एक इंसान है, ठीक है ना। हम नहीं जा सकते, हम बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। ये सब जुमले हैं किरदार के और तरबियत के जुमले हैं ना, सब तरबियती जुमले हैं। कहा फिर याकूब ने जब सुना कि वो भी चला, क्या कहा, क्या कहा, ये सब के सब क्या है, अल्लाह ताला के हवाले है, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर चले गए और हुस्न, और उनकी आंखें सफेद हो गई। इंसान थे, ये देखिए इंसान थे। और फिर उसी का एक जुमला और है कि क्या कहा, हम अल्लाह ताला जी हम सब करते हैं और हमें अल्लाह ताला भरोसा है, हमें उम्मीद असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमिया, उम्मीद है कि अल्लाह सबको ले आएगा, सबको ले आएगा। फिर कहते हैं कि मायूस न होना, हालात संगीन देखिए, दूर दूर तक कहीं उम्मीद ने कहा मायूस न होना, मायूसी कुफ्र है, देखिए वही है। वला तयस्सु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह ताला के रहमत से मायूस न होना। अब आप देखिए फिर वही, फिर वो गए, लेकिन अब की कैफियत क्या है, अब जा रहे हैं। अब सुनिए थर साहब किस अंदाज से जा रहे हैं। अब तक वो अंदाज नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देखिए, अब तो पहुंच रहे हैं भाई, अब थोड़ा सा अंदाज देखिए। अब हम जो ज्यादा, रुक जाइए मौलाना, अभी उनका जवाब थोड़ा सा अभी रह गया है, अभी जवाब और अभी रह गया जवाब, अभी मैं दे देता हूं, और फिर थोड़ा सा और, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए किस तरह से जा रहे हैं, आजिज़ी दरमादगी के साथ। कहा गया हम भूखे लोग हैं, भूखे लोग हैं, नहीं है पैसा, अब थोड़ा वो सदका दीजिए, फतसद्दक़ अलैना। अब पैगंबर के औलाद ये सब भाई है, यूसुफ बेचैन हो गए। तब कहा कि अब रहा नहीं गया, अब रहा नहीं गया भाई, जीना भी वज़ात मुज़्ज़ात फ़ौफ़िलन कैल व तसद्दक़ अलैना, हम पर सदका, ये औलाद याकूब और सदक़े के लिए ये भिखारी बन गए। ये आया जज्बात पाओ, अब हाँ सब्र नहीं कर सके, अना पुकार उठे, अना यूसुफ वहाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो तक़वा की ज़िंदगी है और सब्र करता, सब ज़रूरी है। और मैं एक अर्ज़ कर दूँ, आपको वहाँ भी शक व शुबा हो रहा होगा, जब मूसा और खिज़िर की बात है, आपने देखा कि खिज़िर ने बताया क्या, क्यों मार दिया, बताया नहीं बताया, 3 माह वाक़े कहीं बताया नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, सब इन्नहु मन यत्तक़ि, इसका सूरह इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह, हमको ये पूरी सूरह बशारत की सूरह है, और इसी के साथ साथ सब्र, तक़वा की सूरह है। इसी बुनियाद पर मैं जहाँ तक समझ सका मैंने बताया। मुमकिन है कि आप इससे मुतमईन न हो सके हो, बिल्कुल आज़ादी है, इतना इख्तियार देना चाहिए आपको। वाख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का।